of a point object. The first point is consider a plane mirror AB, and the second point is what we have considered, that a point object is placed, point object O is placed at a distance from mirror AB as shown in figure. जैसे डायग्राम में दिखाई दिया है बेटा कि यहाँ पर हमारे पास में ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर प्लेस किया है. एंड द थर्ड पॉइंट, फर्स्ट we know that according to image formation rule, we require minimum 2 rays of light to form an image of any object. Then first ray, for the plane mirror, we take the first ray which is perpendicular to the mirror. So a ray of light देखो बेटा यहाँ पर इंसिडेंट रे कौन सी है, देखो यहाँ पर OX है ना, ये वाली रे देखो यहाँ पर. यस और नो? Yes, sir. है ना. रे ऑफ लाइट OX, चलो इसको मैं OX को डिफरेंट मार्क्स कर देता हूँ. ठीक है, OX हमारे पास में क्या होगा बेटा, रे ऑफ लाइट OX इंसिडेंट normally on the plane mirror, हम बोल सकते हैं, प्लेन मिरर हमने यूज किया है, on the mirror. So angle of incidence is equal to 0 degree. Yes or no beta? And Yes. the angle of reflection is also 0 degree. And what will happen, the ray will retrace its path. Yes, so angle of reflection is equal to 0 degree. Okay, let's start. The fourth point. देखो first point, third point क्या था बेटा? A ray of light OX incident normally on the mirror, so the angle of incidence is equal to 0 degree, and the ray will retrace its path, so angle of reflection is equal to 0 degree. ठीक है, उसके बाद में हमने बेटा फर्स्ट रे हमारे पास हो गया यहाँ पर फिनिश. सेकंड रे की रिक्वायरमेंट है, और सेकंड रे को हम किसी भी एंगल पर इंसिडेंट हम कर सकते हैं, किस पर, मिरर पर. वी कैन टेक एनी रे ऑफ लाइट व्हिच इंसिडेंट ऑन द मिरर at any angle of incidence. So we took a second ray. So take another ray. Another ray is OY. Okay. Take another ray OY, which incident on the mirror. OY incident on the mirror at a point Y, and the reflected ray कौन सी होगी बेटा, बताओ मुझे. The reflected ray IZ. reflected ray goes along Y, Z, और
yz such that angle of incidence is equal to angle of reflection. Yes or no, beta? Yes. Yes, sir. Yes. Next, the what we can see in the figure that the reflected ray XO and YZ, XO and YZ will never meet in this path. ओके देखो बेटा यहाँ पर ये जो रे बेटा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी और यहाँ से जो OX रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन बेटा ये है ना। देखो यहाँ से ऐसे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये वाली Yes. डायरेक्शन है। तो ये दोनों रेज कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दैट्स व्हाई वी हैव इंक्रीज्ड द रेज ऑफ लाइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देन व्हाट वी विल सी, then we see that the ray of light intersect at a point which is I, and that is the image of point object O. So here we can write that the reflected ray XO, okay, we can write here XO and YZ will never meet. So we extend the reflected rays in backward. Yes or no, beta? In backward, and when we Yes, sir. we extend the rays of light in backward, then we see that the rays of light intersect at a point which is I, and the reflected rays appears to diverge from a point I, which is the image of point object O. Understood, beta? Yes or no? Yes, sir. Okay. Next, the characteristics of the image formed by plane mirror. Characteristics of the image formed by the plane mirror. And what are the characteristics? First characteristic is image is virtual and erect. Virtual and erect. Very good. Virtual and erect. And the second characteristic is Image is laterally inverted. Image is laterally inverted, or we can say that first we have seen that the distance of the image is equal from the mirror as the distance of object. Yes or no? So we can write the distance of object from the mirror is equals to
equal to the distance of image from the mirror. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. And the third one is the size of the image. The size of the image. The size of the image is equal to the size of object. Yes or no, beta? Yes. 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 And the next characteristic is the image is laterally inverted. Image is laterally inverted. And what do you mean by laterally inverted? The right left inversion. Yes. Laterally inverted means to say that the left part of the image, or we can say the left part of the object, left part of the object appears to the right and vice versa. Let's start. The number of images between two plane mirror Suppose two plane mirror are placed at an angle theta. Two plane mirror are placed at an angle theta. Then how many number of images are formed between them due to the both the mirrors? We have to calculate that images and draw the ray diagram. So first, the number of images between two plane mirror depends on the angle between the plane mirrors. Yes or no? Suppose we have, if the angle between the plane mirror is theta. Suppose we have two plane mirror like this. This is the mirror 1 and this is mirror 2. Yes, this is the mirror 1. This is mirror 1 and this is mirror 2. And if the angle between these two mirrors is theta, then how we calculate the number of images between them? Let's start that. First case, if the fraction means to say क्या होगा बेटा? Fraction 360 upon theta is equal to even number. When we divide the 360 by theta, and theta is the angle between the mirrors, and we get an even number, then the number of images will be,
which is given by n, is equal to 360 upon theta minus 1. Yes or no, beta? Then the number of images will be equal to 360 upon theta minus 1. In next case, what we have, if the fraction 360 upon theta is equal to an odd number, then we have two cases, that if the object is placed at the angle bisector. Angle bisector means to say if the angle between two mirror is 120 degree. Yes or no? If the angle between two plane mirror is 120 degree, and when we divide 360 divided by 120, then we will get 3. Yes or no? We will get 3, which is an odd number. So how we get the number of images, it depends on the position of the object. So in first, the number of images n is equal to, here the condition is that when object is placed on the, सर ये इवन और ऑड नंबर जो हम ले रहे हैं वो क्यू का इवन और ऑड लेंगे या फिर जो एंगल बाइसेक्टर, an object is placed डिवाइडेड बाय क्यू का जो एंगल बाइसेक्टर है. हाँ बेटा, 1 सेकंड में फर्स्ट हम कंप्लीट कर ले, देन आई विल गिव यू द आंसर्स योर क्वेश्चन. ओके, इन सेकंड केस the number of images n is equal to 360 upon theta, and here the necessary condition is when object is not placed on the angle bisector. When the object is not placed on angle bisector. And in third case, what we have, if the 360 upon theta is a fractional number. Fractional number means to say, which is in the पॉइंट में आएगा. हाँ, पॉइंट में जो वैल्यूज आती है ना, हाँ, उसको बोला जाएगा. देन हमारे पास में क्या होगा बेटा, the number of images will be the integer part of the fraction. Yes or no beta? For example, if we get 5.1, then the number of images will be 5. Suppose if we divide 360 upon theta and we get 5.1, okay, then number of images will be n is equal to कितना होगा बेटा, 5. That is integer. Okay, the first question is, yes or no? और हमेशा एंगल गिवन रहेगा. हाँ बेटा, एंगल गिवन रहेगा. ओके, ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्या होगा बेटा, बताइए. नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बताइए मुझे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1. यस और नो बेटा,
ये आपको पता है कि जब हम क्या करेंगे बेटा, 360 अपॉन थीटा को जब हम डिवाइड फैक्टर को हम चेक करेंगे तो 360 अपॉन थीटा कैसा होगा, 360 upon theta means to say 90 degree. So we will get 4 and 4 is an even number. Yes or no? 4 is even number. So the number of images, the number of images is equal to 4 minus 1 which is equal to 3. Yes or no beta? Yes sir. Okay. चलिए इसके बाद में ये नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके हाँ बेटा बोलिए। सर आपने थर्ड पॉइंट समझाया नहीं। हाँ बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। And in third case, what we have, if 360 upon theta is a fractional number. Fractional number means to say, suppose we have a decimal and after decimal we have a few numbers. Like for example, we have 3.14 or 4.26. Then here, these are called the fractional number. Then the integer part of the number will be the number of images. So here in first case, when the number is 3.14, then number of images will be 3, which is integer part. And in second case, the number of images will be integer part of the value, which is 4. So basically, when we get a fractional number, then number of images will be integer part of that number. Yes or no, beta? यस समझा। समझो बेटा, चलिए ओके लेट्स स्टार्ट। नोट डाउन हो गया बेटा ये सबका? बेटा 90 डिग्री है, यस और नो? यस सर। यस। तो देखिए यहाँ पर हमको नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करना है बेटा। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करने के लिए हमें रे डायग्राम आना चाहिए। सपोज यहाँ पर कितना बेटा 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है चलिए, है ना। इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। यस बेटा, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और हम बोल देते हैं बेटा ये दिस इज द मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द इमेज ड्यू टू द मिरर 1 एंड ड्यू टू द मिरर 1 हमको इमेज फॉर्म करने के लिए फर्स्ट क्या करना होगा बेटा? फर्स्ट क्या करना होगा? कौन सी रे हम लेते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लेते हैं ना मिरर। परपेंडिकुलर टू द मिरर जो हम रे लेंगे बेटा वो कुछ इस तरह से होगी, देखो। यस और नो? होगी बेटा? वो ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ ज्वाइन करना पड़ेगा ना बेटा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट होगा तो जो इंसिडेंट रे होगी उसकी डायरेक्शन यही होगी बेटा, देखो। यस और नो? एंड जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास होगी वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी ऐसे। यस, सो दैट विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। यस और नो बेटा? यस और नो? यस यस। एंड सेकंड रे जो आप लोगे बेटा वो कहीं से भी आप ले सकते हो, लेफ्ट साइड पे भी ले सकते हो, राइट साइड पे भी ले सकते हो। तो मैं अभी ले रहा हूँ राइट साइड, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं रे ऑफ लाइट लूंगा बेटा तो क्या ऐसे जाएगी, देखो। इंसिडेंट रे ऐसे होगी बेटा। यस, एंड दिस विल बी नॉर्मल। Yes or no? So this will be the angle of incidence. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes. Then the reflected ray will be at an angle of reflection, which is equivalent to the angle of incidence. Yes or no, beta? Like this. So here we can say this angle will be equal to angle of reflection, and that is equivalent to the angle of incidence. So if I देखो यहाँ पर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बेटा ऐसे होगी और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर हम अपर पोर्शन में देखें तो ये कभी भी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज नहीं होगी।
तो कन्वर्ज नहीं होगी तो हमें क्या करना होगा बेटा, इनको बैकवर्ड में एक्सटेंड करना होगा। तो बैकवर्ड में जब इनको एक्सटेंड करेंगे तो देखो ऐसे होगा बेटा, देखो इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, तो क्या इसकी इमेज मुझे यहाँ मिलेगी बेटा, देखो yes or no, and that will be image I1 which is formed due to the mirror M1 and this is the reflected ray. Yes or no beta? Yes or no? Yes. Yes sir. चलिए okay, let's form the image due to the mirror M2. First take a ray of light which is perpendicular to the mirror. Perpendicular to the mirror जो हमारे पास होगी बेटा, वो ray of light हम कैसे लेंगे, देखो perpendicular इस तरह से होगी, देखो and it will retrace its path. So it will be like this. This will be the reflected ray. Yes or no, beta? Yes. And the second ray is taken from the object like this, and this is the normal, and the reflected ray, this is the angle of incidence, and the reflected ray is taken like this. Yes. Okay. Let's the reflected ray. सर हम लोग एक ही रे ऐसे नहीं ले सकते क्या? हाँ बेटा, एक ही रे आप कैसे लोगे? हाँ ऐसे ले सकते हो बेटा, कोई इश्यू नहीं है, बट अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, अभी इसको हटा दीजिए आप, है ना। चलिए देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ पर से रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट ऐसे होगी बेटा, और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई वी एक्सटेंड द रेज ऑफ लाइट इन बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा बेटा, तो जब इसको बैकवर्ड में जब हम एक्सटेंड करेंगे बेटा, तो इस तरह से हमारे पास रेज ऑफ लाइट हमें मिलेगी। And here it will be the image I2 due to mirror M2. Yes or no बेटा? बेटा दोनों इमेज फॉर्मेशन समझ में आई? Yes sir. Yes बेटा? यस सर। Okay. Yes, sir. And अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की कोई थर्ड इमेज हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सपोज इफ आई एक्सटेंड द मिरर like this in this direction, then we can assume a mirror like this. Yes or no beta? Yes or no? सर एक्सटेंड करने Yes. के बाद आपने जो बोला सुनाई नहीं दिया। हाँ बेटा, एक्सटेंड जब हम मिरर को एक्सटेंड कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी मिरर हो सकता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस मिरर के लिए बेटा अगर मैं बात करूं तो इमेज I1 will work as a object, as an object. Yes or no? यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, देखिए here image Yes, sir. I1 will work as an object for mirror M2. Yes or no बेटा? Yes, तो हम I1 की इमेज फॉर्म कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। कर सकते हैं ना बेटा? कर सकते हैं। चलिए Yes, अब उसके बाद में क्या होगा, स्टार्ट करते हैं कि I1 की जो इमेज है वो हम बनाते हैं बेटा। I1 की इमेज हमें बनानी मिरर M2 से,
तो इमेज ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट रे कैसे लेंगे बेटा, परपेंडिकुलर लेंगे, तो परपेंडिकुलर रे यही होगी बेटा, देखो which is reflected at the same angle, yes or no? यस सर। यस, यही होगी ना बेटा। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हुई। देन सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड रे आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड रे मैं जो ले रहा हूँ वो देखिए यहाँ से मैं ले रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल होगा, देखो, यस और नो, यस सर। नॉर्मल होगा बेटा। यस सर। तो जब ये हमारे पास नॉर्मल होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर। तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो क्या होगी, सेम एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी बेटा, देखो। यस और नो बेटा, yes sir, दिस यस विल बी सर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो रे होगी बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, देखो ऐसे। यस और नो, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा बेटा कि एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तो ये वाली हो गई बेटा, देखो फर्स्ट, एंड सेकंड जो रिफ्लेक्टेड रे हो गई वो ये होगी। तो ये दोनों रेज आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी लेफ्ट पार्ट पे, यस और नो। तो इनको हमको क्या करना होगा, बैक साइड में एक्सटेंड करना होगा। तो जब हम इनको बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो कैसे कहाँ पर बनेगी इमेज, बैक साइड ऑफ मिरर। बैक साइड ऑफ द, यहाँ से देखो बेटा। मिरर। Okay, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज फॉर्म होगी बेटा, यहाँ पर देखो, यस और नो, यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी दोनों। दैट विल बी द इमेज I3 which is an image of image, यस और नो बेटा। तो मैं यहाँ से मिरर को देखो रिमूव कर देता हूँ। तो इस इमेज को आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर आप खड़े हो तो आपको ये इमेज दिखाई देगी बेटा, I1 I2 एंड I3, यस और नो, दिखाई देगी बेटा। सर I3 दिखाई दे सकते। हाँ दिखाई देगी ना बेटा, क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से रेज ऑफ लाइट जो भी आएंगी वो सारी रेज ऑफ लाइट ऐसे ही तो आएंगी यहाँ पे। इसको आप इजीली देख सकते हो ना, और इसको भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर, और इसको भी आप देख सकते हो, तीनों इमेजेस आपको दिखाई देंगी ऑब्जेक्ट की, यस और नो। यस सर। यस, ओके। चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो उसके बाद में हमको ड्रॉ करना है बेटा इमेज। देखो सेम पोर्शन जैसे हमने प्रीवियस केस में किया, तो यहाँ पर क्या होगा, इन सेकंड केस व्हाट वी हैव, द इमेज I2 will work as an object for mirror M1, yes or no बेटा, मिरर M1। देखो अब इसमें केस में क्या होगा कि मिरर को हम एक्सटेंड कर देते हैं M1 को। M1 को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा बेटा, तो देखो ऐसे ही होकर एक्सटेंड होगा, देखो, यस और नो, yes यस बेटा। तो अब देखिए, अब हमें I2 जो होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। देन I2 की हमें इमेज ड्रॉ करनी है। तो I2 की इमेज ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर सर। हाँ बेटा बोलिए। सर पर हमें आंसर तो नंबर ऑफ इमेजेस तीन ही मिले ना, तो वो हाँ तो बेटा, हो गया ना। हाँ बेटा, वो तो आपका मोटिव कंप्लीट हो गया कि n इज इक्वल टू हमारे पास 3 होगा, ठीक है। बट आपने बोला ना कि -1 क्यों किया था सर, ओके। अभी क्वेश्चन पेंडिंग है ना बेटा। वो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें फोर्थ इमेज ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि सेम जैसे I1 विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2, सेम एज I2 विल आल्सो वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1, यस और नो बेटा, यस। तो यहाँ यस है ना, सर। है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि I2 की इमेज हमें ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट हमें इमेज ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा बेटा, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। फर्स्ट रे हम परपेंडिकुलर लेंगे, देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, यस और नो, समझे बेटा। I2 अब ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे ना।
मिरर के लिए, M1 के लिए, इस पर जब मिरर पे जो इंसिडेंट रे होगी परपेंडिकुलरली ऐसे फॉल होगी, देखो, यस और नो? याश्री? यस सर। यस बेटा। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको अंदर की साइड इंक्रीज करेंगे तो ऐसे ही होगी, तो ये इस I3 पे कोइंसाइड करेगी, ओके, एंड दैट विल बी द रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस, यस और नो? यस सर। यस, एंड टेक द सेकंड रे ऑन द मिरर। तो मिरर पे अगर सेकंड रे आप लेते हो बेटा, तो सेकंड रे सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस तरह से, तो यहाँ से अगर सेकंड रे आप लेते हो, सेकंड रे हम ऐसे ले सकते हैं बेटा, देखो, that will be the incident ray for mirror M1, एंड यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है बेटा, तो नॉर्मल कैसा हो सकता है? नॉर्मल ये होगा, देखो यहाँ पर, यस और नो? एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, होगा कि नहीं होगा बताइए बेटा? हाँ सर। होगा। देन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए यहाँ पर सेम एंगल हमारे पास होना चाहिए, तो सेम एंगल ड्रॉ करने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमारे पास इस तरह से जाएगी, देखो, यस और नो? आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ज्यादा बना दिया, एंगल जो होगा बेटा वो इस तरह से, yes or no beta? This will be the reflected ray and angle of reflection is equal to r, which is this, yes or no beta? yes। तो देखो अब यहाँ पर आप सेम ये देखोगे कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये है, और जो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे उसके डायरेक्शन ये है बेटा। तो देखो दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो ये दोनों रेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी आगे जा करके, यस और नो? यस सर। यस। तो हमको क्या करना होगा बेटा, इनको बैकवर्ड में एक्सटेंड करना होगा। तो बैकवर्ड में जब इसको एक्सटेंड करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखना, दिस विल, व्हेन वी एक्सटेंड द इमेज, द रे ऑफ लाइट इन बैकवर्ड, देन व्हाट वी विल गेट, द रे ऑफ लाइट विल coincide and the image formed by the mirror M1 of object I2 will be I4, yes or no बेटा? डन। एंड यहाँ पर देखो बेटा I3 एंड I4 जो है वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब आपको क्या होगा बेटा, या तो आपको I3 दिखाई देगा या फिर I4 विजिबल होगा, मतलब आपको दो की जगह पे क्या होगा, एक ही इमेज दिखाई देगी, यस और नो? समझे याश्री? यस है ना? दैट्स वाई हमने क्या किया बेटा, एक माइनस किया है, क्योंकि एक ही इमेज हमें दो बार दिखाई देगी, यस और नो? बट इमेज तो एक ही है बेटा, ऑलरेडी I3 हमारे पास फॉर्म हो रही थी और वही हमारे पास I2 की इमेज भी बनाएगी, यस और नो? यस सर। Yes, that's why we have subtracted 1 from the total number of images, which are 4. Yes, beta. Now we can remove the mirror from here, and that will be the actual ray diagram for your question. सर I3 में जो I4 एक ही पॉइंट पे फॉर्म हो रही है, इसलिए हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया ना 1। हाँ बेटा, क्योंकि हम I3 या I4 में से दोनों को एक ही कंसिडर करोगे ना आप, क्योंकि एक ही पॉइंट पे फॉर्म हो रही है तो एक ही इमेज बनेगी वहां पर, यस और नो? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, इसी कोई एक पॉइंट मैंने लिया है ऐसा, और इसी पॉइंट के ऊपर मैं दूसरा पॉइंट पे बना देता हूं, तो क्या आपको दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है बेटा? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा ना। तो यहाँ पर सेम पहले I3 बन गया बेटा, देन I4 भी इसी के ऊपर बना दिया, तो आपको तो सिर्फ I3 दिखाई देगा या फिर I4 दिखाई देगा, तो मतलब बेसिकली आपको सिर्फ 1 इमेज दिखाई देगी ना बेटा, हाँ। यस। तो यहाँ से एक हमको रिड्यूस करना था, दैट्स व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस,
Yes or no, beta? ओके Okay. Okay, now draw the ray diagram.